Okay, so today we'll see about the post-transcriptional modification. So if here again, what is the difference between the post-transcriptional modification in prokaryotes and eukaryotes? Then generally what happened in most of the genes in the prokaryotes, the RNA is directly transcribed from the DNA template and it immediately goes for the protein synthesis. Means from DNA to RNA and then to the protein synthesis. So no, as such there is no transcriptional, post-transcriptional modifications takes place. Okay, but when we talk about the eukaryote, what happened in eukaryotes? The primary transcript, which is also known as the heteronuclear RNA, it undergo different type of modification to produce the mature mRNA that can be used by the translational machinery for polypeptide synthesis or protein synthesis. So basically the post-transcriptional modification is set of the biological process which is common in most of the eukaryotic cell, where the primary transcript of or hnRNA is undergoes some changes after transcription to produce the mature functional mRNA molecule that can leave the nucleus and go to the several different part of the cell to perform the different kind of function by after translation or protein synthesis. Okay, so we'll see what are the processes involved in post-transcriptional modification. Okay, so if I'm talking, as I have told, the post-transcriptional modification is not limited to mRNA only. It doesn't mean only from hnRNA to the process, from the processing from hnRNA to the mRNA there is modification. Even there is a other class of RNA like ribosomal RNA, tRNA, or sRP RNA, snRNA, SNO RNA, miRNA. These are also some other group of RNA which also undergo the post-transcriptional modification. So today we are going to discuss about the post-transcription modification in mRNA. In next class, we'll also see what are the post-transcription modification in other class of RNAs. Okay, so now the important post-transcription modification, okay, which is required for the production of mature mRNA. So the number one is the 5' capping. Means when the transcript is formed by the process of transcription, what happened? Basically your template strand is 3', 5'. Okay, template strand से आपका transcription हो रहा है, it generating the transcript of 5', 3'. Okay, premature transcript 5' to 3'. So the very first step is capping, adding a cap at the 5' end of the newly synthesized transcript. That is the very first post-transcription modification in the mRNA. Then second one is polyadenylation, okay, or 3' maturation. When the transcription completes, means our entire transcript from 5' to 3' is transcribed with the help of RNA polymerase II. What happened at the 3' end, there is a addition of the poly A tail that is known as the polyadenylation. So that is the second process which takes place for the maturation of mRNA. Then third one is the splicing. Okay, if you have studied the structure of the gene, particularly in eukaryotes, what we used to see, the gene which is coded for a gene which is which code for the mRNA and then for the protein is interrupted. Interrupted in the means the coding region have followed by the non-coding region, then again a coding region, non-coding region, and a coding region. Means there is a intervals of coding and non-coding region. So what happened when the transcription occurs? What happened? The entire region get transcribed. The coding as well as the non-coding region get transcribed. Okay, the coding region is known as an exon and the non-coding region is known as a intron. So what happened? The exon and intron, they both get transcribed. Both get transcribed. So, as I have told, the exon is the coding region and intron is the non-coding region. Means intron doesn't, it is not coding for any protein, or it is not coding for any polypeptide. So that needs to be removed. Okay.
that intron, so the removal of introns from the transcript, the removal of introns or the non-coding region from the primary transcript is known as a splicing. So this is the third step which is takes place for the production of the mature mRNA splicing. Then the fourth one is the transport of mRNA to the cytoplasm. Okay, because all these process, the 5' capping, the 3' maturation or polyadenylation, as well as the intron splicing, it all takes place inside the nucleus of the eukaryotic cell. So when the mature transcript form, it get transported from the nucleoplast to the cytosol or cytoplasm. And then the next step is the stabilization or destabilization of the mRNA. Okay, that is also one type of the post-transcription modification. Whether the mature mRNA is going to stabilized and translated into the protein or not, that will be decided inside the cytoplasm. Okay, these are the 5 important post-transcriptional modification which occurs in the production of the mature mRNA from a primary RNA transcript, okay, which is transcribed by the RNA polymerase 2. Now, what will be the likely order? As I have discussed, the number 1 will be the transcription and the 5' capping, followed by the cleavage at poly A site, then the polyadenylation and RNA splicing. So we will discuss these steps in these sequences one by one. Here we can first we will see for the 5' RNA capping. Okay, this is basically it. What happened? This is actually not the post-transcript. In literal terms, if we talk about, this is not the post-transcriptional modification. We can say that it is actually the co-transcriptional modification. Means the process of 5' RNA capping doesn't wait for the transcription to get complete. What I have told, the 5' capping, if we talk about in the literal terms, if we talk, the 5' capping is not the post-transcriptional modification. In very literal term, it is actually the co-transcriptional modification. Means the 5' capping, it doesn't wait for transcription to get completed. Okay, क्या होता है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज 2 आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की लेंथ पहुंचती है आपको 30 बेसिस. ओके, जैसे ही 30 बेसिस पे पहुंचती है, क्या होता है कि 5' कैपिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. यानी कि ट्रांसक्रिप्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रांसक्रिप्शन चल ही रहा है. जस्ट द ट्रांसक्रिप्ट का जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ वो 30-35 बेसिस तक पहुंचा, एंड देन द 5' कैपिंग विल स्टार्ट. व्हाट इज 5' कैपिंग? इट is basically the modification which occurs at the 5' end of the primary transcript. That's why it is known as a 5' RNA capping. Why? Because it always, क्योंकि आपका जो टेम्पलेट है वो 3', 5' स्टैंड पे है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसक्राइब हो रही है आपकी ट्रांसक्रिप्ट mRNA जो कि है आपका 5', 3'. तो सबसे पहले आपका 5' ही सिंथेसाइज हो रहा है. यस मैम, प्राइम का बोलते हैं 5' RNA कैपिंग. 5' क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अगर आपको याद होगा जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो एक स्ट्रैंड तैयार होता है, तो अगर वहां पर तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे डीएनए है या आरएनए, वो किससे मिलके बना है? डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है ना. डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ती हैं ड्यू टू द कौन सा लिंकेज होता है उनके अंदर? दो जो आपके जब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं तो कौन सा लिंकेज होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है ना. दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है. तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में क्या होता है कि आपकी जो दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड होती हैं, एक का 5' पे मतलब जो 5th कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप लगा है, उसमें जो आपकी राइबोस रिंग होती है ना, राइबोस शुगर होती है ना आपकी, या डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है ना डीएनए आरएनए में.
तो राइबोज Yes, शुगर ma'am. के अंदर 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व होता है और एडजेसेंट शुगर जो होती है उसकी 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो जो पहला जो न्यूक्लियोटाइड है जिसका 5 प्राइम फ्री है, यानी 5 फॉस्फेट रीजन फ्री है, उसको हम 5 प्राइम बोलते हैं, और जिसका 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है उसको 3 प्राइम बोलते हैं। यानी कि अगर आपका कोई भी जो भी आपका डीएनए सिंथेसाइज होता है या आरएनए सिंथेसाइज होता है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। यानी कि Yes. पहले Yes. जो भी ट्रांसक्रिप्ट बनेगी उसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप जो 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री होगा आपका, और जब खत्म होगी तो उसके 3 प्राइम एंड का शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप। Yes. एक सेकेंड ओके, so that is why it is known as a 5 prime। क्यों? क्योंकि ये उस 5 एंड पे हुआ जहां पे राइबोज के 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फ्री है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so इसको 5 prime capping because it occurs at the 5 prime end of the primary transcript. Okay, अब modification किस तरह का modification होता है we'll see। Basically इस modification में क्या होता है, 5 prime end पे आकर के आपका एक 7 methyl guanylate residue जो है वो अटैच हो जाता है। जो आपका ग्वानिन होता है ना, ग्वानिन जो आपका प्यूरिन होता है, एडनिन ग्वानिन होते हैं ना, 2 प्यूरिन्स होते हैं आपके डीएनए आरएनए में। तो जो ग्वानिन होता है अगर उसका 7th जो रिंग में जो 7th कार्बन है दैट इज मिथाइलेटेड। तो ये जो 7 मिथाइल ग्वानिन रेजिड्यू है या 7 मिथाइल ग्वानिलेट रेजिड्यू है, इट अटैच टू द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ द प्री एमआरएनए। लेकिन यहाँ पर जो लिंकेज है दैट इज 5 प्राइम लिंकेज। जनरली जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो हमेशा जो लिंकेज होता है वो 5 प्राइम 3 प्राइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 प्राइम 3 प्राइम लिंकेज होता है, ठीक है। बट जब यहाँ 5 प्राइम कैपिंग होती है तो जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है एमआरएनए का उसके साथ जो 7 मिथाइल गुआनिलेट रेजिड्यू जुड़ता है उसके बीच में 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। ओके, तो अगर आपका पहले न्यूक्लियोटाइड से आके 7 मिथाइल गुआनिल रेजिड्यू जुड़ा, सो दैट कैप इज नोन एज अ कैप 0, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो फर्स्ट रेजिड्यू है एमआरएनए का, यानी कि एन मिथाइल जी जुड़ने के बाद जो पहला रेजिड्यू कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड, अगर एक्स पे के सेकेंड कार्बन पे कोई ओएच ग्रुप जुड़ जाए तो हम उसको बोलते हैं कैप 1। और अगर उसके बाद फर्स्ट के साथ साथ सेकंड न्यूक्लियोटाइड पे भी OH ग्रुप जुड़ जाए तो हम उसको बोलते हैं कैप 2। यानी कि अगर सिर्फ क्या कहते हैं 7 मिथाइल ग्वानिन जुड़ा 5 प्राइम एंड पे तो वो कैप 0 है। अगर वो कैप 0 में फिर आपके फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पे OH क्या कहते हैं एक और मिथाइल ग्रुप लग जाए तो वो आपका कैप 1 है। और अगर उसके सब्सिक्वेंट न्यूक्लियोटाइड पर भी आपका मिथाइल ग्रुप लग जाए तो वो आपका कैप 2 है। ओके, we'll see in the next slide then it will be more clear। okay, पहले तो what are the enzymes okay which are responsible for 5 prime capping। तो सबसे पहला जो एंजाइम होता है दैट इज द आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज और न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोहाइड्रोलेज। ये बेसिकली क्या करता है, जो आपका एमआरएनए होता है जिसका जो 5 प्राइम पे जो एक सिंगल ट्राइफॉस्फेट होगा ना, 5 प्राइम पे 3 फॉस्फेट होंगे तो उसमें से एक फॉस्फेट को रिमूव कर देता है, ठीक है। ये जो आपका आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज है इट रिमूव्स 1 फॉस्फेट। अब क्या होगा, अब एक दूसरा एंजाइम आएगा व्हिच इज नोन एज द गुआनालाइल ट्रांसफेरेज। ओके, तो ये जो आपका गुआनालाइल ट्रांसफेरेज है ये क्या करेगा, आकर के आपका यहाँ पे 7 मिथाइल गुआनिन, यहाँ पे जो आपका ग्वानिन है उसको ऐड करेगा। बेसिकली ग्वानिन रेजिड्यू जो है वो यहाँ आकर के बाइंड हो जाएगा ना। एंड देन देयर इज अनदर एंजाइम व्हिच इज नोन एज द मिथाइल ट्रांसफेरेज जो कि आपके 7th कार्बन पर जो आपका प्यूरिन चेन का जो 7th कार्बन है उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा। ओके, और यहाँ पर जो आपका मिथाइल ग्रुप का डोनर है वो एंडोमेट है, यानी कि एस एंडोसाइल मिथ्योनिन। ओके, एन एंडोसाइल मिथ्योनिन जो है वो मिथाइल को डोनेट करेगा। और जो एंजाइम है मिथाइल ट्रांसफेरेज ये ग्वानिन रेजिड्यू जो आपकी कैप लगी 5 प्राइम पर
उसके 7th कार्बन को मिथाइलेट कर देगा, ठीक है, यानी वहां से OH रिमूव हो जाएगा और मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। तो इस तरह की जो कैप फॉर्म हुई उसको हम बोलेंगे कैप 0। अब आपने देखा ये आपके 5 प्राइम पे एक G कैप लग गई, 7 मिथाइल गुआनिल की एक कैप लग गई। अब उसका जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है XYZ, तो अगर X पे मिथाइल ग्रुप लग जाए, अब यहाँ कैप के साथ साथ X पे एक मिथाइल ग्रुप लग जाए सेकेंड कार्बन पे, तो हम उसको बोलते हैं कैप 1। और उसके बाद अगर नेक्स्ट में Y पर भी मिथाइल लग जाए देन इट इज नोन एज कैप 2। यानी कि अगर सिर्फ 5 प्राइम पे 7 मिथाइल गुआनिन लगा दैट इज नोन एज अ कैप 0। इसके साथ साथ अगर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पे सेकंड कार्बन पे मिथाइल लग गया देन इट इज कैप 1। और अगर उसके सेकंड पे भी मिथाइल लग जाता है देन इट इज नोन एज कैप 2। ओके, these are the set of enzymes which is required for the 5 prime capping. Now why the 5 prime capping is required? Okay, if there is something happens inside the cell, if some process is going on, it must have some significance. Okay, because nature have chosen the things, matlab there is nothing unnecessary. Okay, everything have certain purpose and function. So here we'll see what are the function of the 5 prime cap, means what is the benefit if the mRNA or the transcript gets the 5 prime cap. Okay, so very first thing, it protects from the राइबोन्यूक्लियेजेस। सेल के अंदर कुछ राइबोन्यूक्लियेज होते हैं जो कि आपकी जो mRNA या RNA बनते हैं उनको कॉन्टिन्यूसली डिग्रेड कर सकते हैं। अब कैप लगने से क्या होता है, तो ये जो राइबोन्यूक्लियेजेस होते हैं दे आर स्पेसिफिक फॉर 5 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये क्या करती है, ये जो कैप होती है आपने देखा इस जब गुआनिन की कैप लगती है तो यहाँ पे 5 प्राइम जो है वो बॉन्डिंग होती है, यानी 5 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है। तो 5 प्राइम के लिए सेल्स के अंदर राइबोन्यूक्लियेजेस नहीं होते टू रिकॉग्नाइज द 5 प्राइम एंडोन्यूक्लियेजेस। ओके, that's why the 5 prime cap provides the protection from the ribonucleases so that it prevents the degradation of the newly transcribed RNA from endonucleases or ribonucleases. Then second, it enhances the translation. Okay, because of 5 prime cap the stability of mRNA increase. So if the mRNA is stable the transcription will enhance. Okay, and it also enhance the transport from the nucleus, because ये आपका 5 prime cap है तो ये stable है तो it triggers the signal that it needs to be get transported from the nucleoplasm to the cytoplasm, from nucleus to the cytosol. Okay, then it enhances the splicing of first intron in some of the pre-mRNA. If अगर 5 prime cap लगी हुई है so it also help in the splicing or removal of the introns or non-coding RNA or gene or region actually from the newly transcribed transcript. Okay, so ये होगी 5 prime capping. Now the second क्या था हमने पढ़ा था, cleavage and polyadenylation. So basically जो कैपिंग होती है वो 5 प्राइम पे होती है, जो पॉलीएडेनाइलेशन होता है वो 3 प्राइम एंड पे होता है। यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक प्रोसेस होती है, लास्ट की थोड़ा सा जो फ्रेगमेंट है 3 प्राइम एंड का वो क्लिप हो जाता है, वो क्लिप होके निकल जाता है और वहां पर बहुत सारी AA मतलब कॉन्टिन्यूअस एडेनिन रेजिड्यू की लंबी सी चेन लग जाती है। दैट poly means several. Adenylation means addition of several adenine residue. Okay, and if we are talking about the 3 prime polyadenylation, it means the addition of several adenine residues at 3 prime end. Okay, so this is the process where the string of adenine nucleotides added at the 3 prime end of the transcript, and this process is known as polyadenylation. Okay, so what happened in most of the cytoplasmic mRNA, what happened, there is a polyadenylation occur and the number of adenine residues is varies from 50 to 250. Okay, 50 से लेके 250 तक के जो adenine residues हैं वो 3 prime end पर add होते हैं, ठीक है। and there are some genes which जिसमें कि adenylation होता ही नहीं है। उसमें से एक एग्जांपल है जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन के लिए जो mRNA बनता है
उस mRNA में polyadenylation नहीं होता है. Okay, and this process of polyadenylation was discovered by the Darnell and his team in 1971. Okay, और ये जो poly A tail है, ये जो poly A tail add होती है 3 प्राइम एंड पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली, इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम बोलते हैं पॉली ए पॉलीमरेज. ओके, पॉलीएडेनाइलेशन में बेसिकली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला द क्लीवेज ऑफ आरएनए एट 3 प्राइम एंड देन एडिशन ऑफ द एडेनिन रेजिड्यू. होता क्या है, जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है तो 3 प्राइम एंड का थोड़ा फ्रेगमेंट जो है वो क्लीव होकर अलग हो जाता है. ठीक है, और उसके बाद जो है फिर एडेनिन का जो है वो एडिशन होता है. ठीक है, सो नाउ कैसे सेल्स को सिग्नल मिलता है या कैसे पता चलेगा कि यस यहाँ से अब क्लीवेज होना है और पॉली ए टेल लगनी है. उसमें तो प्राइम 5 प्राइम कैपिंग में क्या होता है, पहले न्यूक्लियोटाइड पे लगनी है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे एंड हो रहा है, उसके लिए सेल्स में जो आपका जीन होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं जिसको कि आपकी सेल मशीनरी रिकॉग्नाइज करती है और फिर प्रोसेस करती है 3 प्राइम पॉलीएडेनाइलेशन के लिए. तो एक क्लीवेज सीक्वेंस होता है व्हिच इज नोन एज द CA और एक पॉलीएडेनाइलेशन सिग्नल होता है यानी कि AAU फिर AAA. तो ये जो AAA होता है ये 10 से 30 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम होता है क्लीवेज साइड के. यानी अगर एंड में अगर 3 प्राइम एंड पे CA सीक्वेंस है और उस CA सीक्वेंस से 10 से 30 न्यूक्लियोटाइड के बाद AAA सीक्वेंस आ जाता है तो मींस कि ये क्लीवेज साइट है. यानी यहाँ पर क्लीवेज होगा और यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट अलग हो जाएगी और उसके बाद जो है पॉलीएडेनाइलेशन होगा. हियर यू कैन सी दैट, देखो यहाँ पर पॉली ए सिग्नल है AAU ट्रिपल A, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच के बाद यहाँ CA सिग्नल है और ये CA सिग्नल है व्हिच इज अ क्लीवेज साइट और थोड़ा डाउनस्ट्रीम पे आपका GU रिच रीजन भी होता है. सो अगर ऐसा कंजर्व सीक्वेंस 3 प्राइम एंड पर मिलता है मींस इट इज अ सिग्नल फॉर द क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन. ओके, सो नाउ तो अब इसमें भी कुछ एंजाइम्स तो मैंने बताया कि पॉली ए पॉलीमरेज होता है. दिस एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर एडिशन ऑफ द एडेनिन रेजिड्यू एट 3 प्राइम साइड. देयर आर सम प्रोटीन्स आल्सो व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द क्लीवेज as well as polyadenylation of the new transcript. Okay, and these are the specific protein which are required for the efficient cleavage. Okay, पहली जो है वो आपकी CPSF है which is known as the cleavage and polyadenylation specificity factor which binds on the conserved sequence AAU AAA. फिर दूसरी है आपकी CSTF which is cleavage stimulating factor which binds on GU rich region. Then तीसरी है CF1 and CF2 cleavage factor 1 and 2 जो कि आपके RNA के साथ bind करती है. And then there is an enzyme poly A polymerase that actually catalyze the addition of this several adenine residue after the cleavage. Okay, and then there is another protein and RNP2. Okay, which is also stimulates the cleavage. So now what are the function of the poly A tail? If the polyadenylation used to occur, then what is the purpose? Okay, so number 1, it promotes the stability. कैसे? जैसा कि मैंने बताया सेल के अंदर एंडोन्यूक्लियसेस या राइबोन्यूक्लियसेस होते हैं, वो 2 तरह के बॉन्ड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, या तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ डिग्रेडेशन करेंगे या 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ. तो 5 प्राइम की एंडोन्यूक्लियोसिस की एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए एमआरएनए में 5 प्राइम एंड पे कैप लग गई 5 बॉन्ड की. अब अगर 3 पर फ्री रहेगा तो यहाँ से भी एंडोन्यूक्लियोसिस अटैक कर सकते हैं और एमआरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं. तो एमआरएनए की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, राइबोन्यूक्लियस की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए ये पॉली ए टेल जो है वो 3 प्राइम एंड पर ऐड होती है. दूसरा, और अगर किसी भी एमआरएनए से इस टेल को निकाल दिया जाए, अगर पॉली ए टेल को निकाल दिया जाए तो उसकी वजह से बहुत ही रैपिड डिग्रेडेशन होता है आरएनए का. It also enhances the translation. How? Because it shows that this mRNA is stable, processed and stable, so it needs to be get transported and to the cytosol, followed by the translation. Okay, so basically it helps in the recruitment of the ribosome.
Then it also help in the binding of a poly A binding protein in the cytoplasm, and it also synergistically stimulate with CAM. So this is about the polyadenylation. अब मैंने बोला कि थर्ड स्टेप है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, दैट इज स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग क्या है? बेसिकली जो यूकैरियोटिक जीन्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, द यूकैरियोटिक जीन्स आर द इंटरप्टेड और स्प्रेड जीन्स. इंटरप्टेड और okay, as I have told, the eukaryotic gene is the interrupted or the split gene. Okay, so what happened in the in eukaryotic gene, the coding sequence, which is known as an exon, is interrupted or separated by the non-coding sequence, which is known as intron. So before translation, this non-coding region is this non-coding sequence needs to be removed. Is it? It needs to be removed. So the removal of introns from the primary transcript is known as a splicing. Okay. Means when the transcription occur, a gene have both the region. The gene have exon and intron both. The eukaryotic gene, it have intron as well as exon. It have coding region as well as non-coding region. So what happened? ये आपके पूरे के पूरे ट्रांसक्राइब हो गए. The coding region भी ट्रांसक्राइब हो गया और non-coding region भी ट्रांसक्राइब हो गया. तो लेकिन जो कोडिंग रीजन है वो ही किसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को या प्रोटीन को कोड करता है. नॉन कोडिंग रीजन तो किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड को कोड नहीं करता. सो दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड बिफोर ट्रांसलेशन. यानी जो मैच्योर आरएनए बनेगा, जो मैच्योर एमआरएनए बनेगा ट्रांसलेशन के लिए, उसमें से क्या कहते हैं आपका इंट्रॉन्स का रिमूवल जो है दैट इज मस्ट. So that removal of intron from the primary transcript for the production of the mature RNA is known as a splicing. Okay, so here we'll see कैसे. ये आपका एक स्प्लिट जीन का स्ट्रक्चर है या एक यूकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों हैं. ये जो रेड कलर की लाइंस है दे आर द नॉन कोडिंग रीजन. ओके, और ये जो बॉक्सेस हैं ब्लू और येलो बॉक्सेस हैं दे आर द कोडिंग रीजन. ओके, तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है बेसिकली, तो ये पूरा यहाँ जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से लेके ट्रांसक्रिप्शन की जो स्टॉप साइट है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ट्रांसक्रिप्ट बनती है. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ स्टार्ट पॉइंट से लेकर के स्टॉप पॉइंट तक ट्रांसक्राइब होगी. ये पूरी की पूरी जो रीजन है ये ट्रांसक्राइब हो गया. अब आप देख रहे हैं इसमें आपका कोडिंग रीजंस भी है लाइक ब्लू एंड येलो बॉक्सेस, और फिर ये रेड लाइंस जो है आपके नॉन कोडिंग रीजन है. तो अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद बेसिकली क्या होना है? ट्रांसलेशन होना है. तो ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनेगी. तो उसके लिए ये जो नॉन कोडिंग रीजंस है दैट नीड्स टू बी रिमूव. ओके, तो इन नॉन कोडिंग रीजंस को जो रिमूव करते हैं उसको हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं. और उसके बाद देखिए एक मैच्योर एमआरएनए बनता है जिसमें कि एक भी नॉन कोडिंग रीजन नहीं है. ठीक है, अब इसमें भी आपका यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ब्लू बॉक्सेस है और येलो बॉक्सेस है, तो ये जो येलो बॉक्स वाला जो रीजन है, जो येलो रीजन है दैट इज द एक्चुअल रीजन व्हिच कोड्स फॉर द प्रोटीन. मींस दैट इज द रीजन व्हिच विल बी ट्रांसलेटेड. ये जो नीला वाला रीजन है ये मैच्योर एमआरएनए में रहता तो है लेकिन ये ट्रांसलेट नहीं होता है. इसलिए अगर जो 5 प्राइम पर है उसको 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं, और जो 3 प्राइम पर है उसको 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट नॉन कोडिंग. हाँ बोलो मैम, नॉन कोडिंग रीजन भी ये ट्रांसक्रिप्शन होती है मैम? हाँ, नॉन कोडिंग रीजन भी ट्रांसक्राइब होगा, पूरा होता है एक जीन में. यहाँ स्टार्ट पॉइंट से लेके स्टॉप पॉइंट तक पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट बन रही है. और यूटीआर रीजन नहीं होता है मैम? यूटीआर रीजन भी हो रहा है ना, पूरा हो रहा है. मैं कह रही हूँ कि जहाँ जो जीन का स्टार्ट है वहां से पूरा जीन के स्टॉप तक ट्रांसक्रिप्शन हुआ. ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनी. 1 सेकेंड, एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनी. और अब क्या हुआ कि इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में जैसा कि मैं तुम देख रहे हो कोडिंग रीजन भी है, नॉन कोडिंग रीजन भी. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? रिमूवल ऑफ दीज नॉन कोडिंग रीजन. ओके, तो जो ये नॉन कोडिंग रीजन का रिमूवल होता है इसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग. मतलब ये स्प्लाइस्ड आउट हो गया, कट के निकल गया. अब बचा आपके पास कोडिंग रीजन. तो यहाँ पे देखो दो तरह के कलर है, एक येलो कलर यूज किया है, ब्लू कलर यूज किया है.
तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये मतलब प्रोसेसिंग के बाद भी रह गया, लेकिन ये ट्रांसलेट नहीं होगा, ट्रांसलेट सिर्फ येलो रीजन होगा। तो इसको 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं। इसको ये ट्रांसक्राइब तो है लेकिन ट्रांसलेटेड नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ओके, यस मैम। ओके, नाउ स्प्लाइसिंग या रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स में होता क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि जो इंट्रॉन्स या जो इंटरवेनिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड नहीं करते, तो ये जो है ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से इसको रिमूव कर दिया जाता है, और जो जो एक्सॉन्स बचते हैं यानी जो कोडिंग रीजन्स बचते हैं वो आपस में लाइगेट हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं टू फॉर्म द मैच्योर एमआरएनए। फिर वो मैच्योर एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरी प्रोसेस को, ये जो स्प्लाइसिंग की पूरी प्रोसेस होती है, यानी पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना कि कहाँ इंट्रॉन है, कहाँ तक एक्सॉन है, कितने इंट्रॉन है, कितने एक्सॉन है, ठीक है, फिर उनका रिमूवल, इंट्रॉन्स का रिमूवल, फिर बचे हुए एक्सॉन का आपस में लाइगेशन, ये सारा जो मैकेनिज्म है, जो सारी मशीनरी होती है, इसको एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है इस पूरी रिएक्शन को जो है कैटलाइज करता है या परफॉर्म करता है। एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है इसमें कुछ एंजाइम्स और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, इनको हम उस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, ये स्प्लाइसियोसोम जो है ये एक्चुअली पूरा रिएक्शन परफॉर्म करता है जिसमें कि आपके इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और बचे हुए एक्सॉन सेल्फ लाइगेट हो जाते हैं, तो वो आपस में लाइगेट हो जाते हैं। ठीक है, so we'll see here, ये एक तरह का एक एग्जांपल है कैसे स्प्लाइसियोसोम जो है इंट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है। एक्चुअली यूकेरियोटिक सेल्स में कुछ ऐसे भी मैकेनिज्म है जहां पर सेल्फ स्प्लाइसिंग हो जाती है। सेल्फ स्प्लाइसिंग मतलब कि उनको स्प्लाइसियोसोम या किसी एंजाइम या प्रोटीन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंट्रॉन्स में ही कुछ सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं चेंजेस आएंगे, कन्फर्मेशन चेंजेस आपके ट्रांसक्रिप्ट में और इंट्रॉन रिमूव हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द जो जीन्स है उसमें आपको एक मशीनरी लगती है, पूरा पूरा प्रोटीन और क्या कहते हैं आरएनए कॉम्प्लेक्स लगता है जो कि आपके इंट्रॉन को रिमूव करते हैं। यहाँ देखिए ये एक एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है, तो ये जो स्प्लाइसियोसोम्स होते हैं जिसमें कि आपके एसएनआरएनए प्रोटीन्स होती हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये टुगेदर जो है यहाँ पर ऐसा लैरिएट जैसा फॉर्मेशन करते हैं और इस पॉइंट पर जो है ये ट्रिगर करते हैं रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन। तो ये जो है आपका इंट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया और दोनों जो एडजेसेंट एक्सॉन थे यानी इस इंट्रॉन के दोनों तरफ के जो एक्सॉन थे वो आपस में लाइगेट हो गए और आपका मैच्योर एमआरएनए जो है वो फॉर्म हो गया, और उसके बाद आपकी जो स्प्लाइसियोसोम असेंबली है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। अब एक दूसरा फिनोमेना है दैट इज नोन एज द ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ये भी बहुत कॉमन है यूकेरियोट्स में। इसमें होता क्या है कि एक ही मैच्योर एमआरएनए दो अलग अलग तरह की प्रोटीन्स को कोड कर सकते हैं, यानी कि एक ही टाइप की ट्रांसक्रिप्ट बनी, एक जीन है जिसमें बहुत सारे एक्सॉन इंट्रॉन्स हैं, वो सारे एक साथ ट्रांसक्राइब हुए और फिर उनकी प्रोसेसिंग हुई, यानी 5 प्राइम कैपिंग हुई, 3 प्राइम पॉलीएडेनाइलेशन हुआ। अब ये मैच्योर एमआरएनए हो गया, दोनों तरफ से दोनों एंड उसके स्टेबल हो गए। अब जो स्प्लाइसिंग है वो ऑल्टरनेट तरीके से होगी, कई तरीके की स्प्लाइसिंग होगी, यानी एक ही टाइप की ट्रांसक्रिप्ट से, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट से दो तरह की प्रोटीन्स बनेंगी। ठीक है, दैट इज नोन एज द ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। मतलब कि सेम जीन है, एक टिश्यू में वो प्रोटीन ए ट्रांसलेट करेगा, वही जीन जो कोड कर रहा है किसी पर्टिकुलर टिश्यू में या पर्टिकुलर सेल में प्रोटीन ए, और सेम जीन जिसका सेम ट्रांसक्रिप्ट है बट उसकी स्प्लाइसिंग अलग तरीके से हुई, तो वो दूसरे जीन या दूसरे टिश्यू में प्रोटीन बी ट्रांसलेट कर रहा है या प्रोटीन बी को कोड कर रहा है। विल सी हाउ ये कैसे पॉसिबल है। देखो ये सपोज एक जीन है जो किसी सेल में पर्टिकुलर प्रोटीन ए को कोड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2। तो बेसिकली क्या होगा, आपका इंट्रॉन 1 और इंट्रॉन 2 जो है वो स्प्लाइसिंग के थ्रू रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2 रिमूव हो गया। अब क्या हुआ कि एक्सॉन 1, 2, 3 जुड़ करके एक मैच्योर एमआरएनए बना और आपका ट्रांसलेशन हुआ, तो आपकी प्रोटीन बनी प्रोटीन ए। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, आपकी एक तरह की प्रोटीन बन गई। अब दूसरा एग्जांपल है, क्या हुआ कि ये पूरा
सिर्फ ये इंट्रॉन के साथ, दोनों इंट्रॉन के साथ बीच का एक्सॉन भी रिमूव कर दिया, यानी कि एक यहाँ से कट लगाया, एक यहाँ से कट लगा के ये पूरा फ्रैक्शन अगर रिमूव हो गया तो अब खाली एक्सॉन 1 और एक्सॉन 3 मिले, तो अब इसने एक अलग टाइप की प्रोटीन को कोड किया, लाइक प्रोटीन बी। तो ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की मैकेनिज्म से क्या होता है कि सेम ही ट्रांसक्रिप्ट जो है अलग अलग टिश्यू या अलग अलग सेल में या अलग अलग रिस्पॉन्स, सेलुलर रिस्पॉन्स पर अलग अलग प्रोटीन्स को कोड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट द mRNA processing. What we have seen, first we have seen the 5 prime capping जिसमें कि आपके 5 prime end पे n methyl guanyl residue ऐड होता है। Then we have seen 3 prime polyadenylation जहाँ पे 3 prime end पे पहले cleavage होके थोड़ा fragment remove होगा और poly A polymerase with the help of some proteins वहाँ पर several adenine residue लगा देगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्प्लाइसिंग होगी, जो आपके स्प्लाइस जो आपके इंट्रॉन्स हैं will be removed, okay? कुछ जीन्स में with the help of spliceosome, कुछ जीन्स में सेल्फ रिमूवल ही हो जाता है इंट्रॉन्स का, और या फिर सेम ही मैच्योर आरएनए अगर अलग अलग तरह से स्प्लाइसिंग होगी तो अलग अलग तरह के मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बनेंगे that will code for the different type of protein. This is about today's class.